हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अ क्लासिफिकेशन ऑफ द अर्थ मोमेंट। द अर्थ मोमेंट आर द क्लासिफाई ऑन द वेरियस बेसिस on the basis of the time taken by such a movement, and they are divided into the further two types. There is a slow movement and sudden movement. There is a most important moment here, slow movement and sudden movement. The first here is a slow movement. Where is the slow movement here? The movement which is a bearing about the change on the earth as a crust very gradually, or slowly taking to hundred and thousand of years, and which the cover a period is a much longer than to the human lifespan, are called slow movement. There is a most important here definition in the slow movement. The moment which is varying above the change on the earth as a crust very gradually, or slowly taking to the hundred and thousand of years, and which is a cover a period is a much longer than to the human lifespan, are called slow movement. And this movement act on their earth as a crust others are vertically and horizontal. There is a movement act on the earth as a crust is the other vertically and horizontally. The acting there vertically, there is a case of the uplift and the subsideness of on the part of the crust. The rise of the sea which is along to the Kathawars and the coastals of the India, which is the contain their shells of the marine life, and clear point out that this is the coastal was once below there is a sea level. Similarly, arise to the beaches are there found in the Orissa, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu along the eastern coastal of India as well. These beaches has been to the is uplifted to be height and ranging between to the 15 to 30 meters above the mean sea level. On the other hand, there is a nearest is the example of the submergence and such as the presence of the peats at the lateral and the beds found below to the sea level in the Sundarban Delta and the submarine forest in the Tiruvallur in Tamil Nadu, and there is a submarine forest on the east coast of Mumbai Island. What do you mean to the sudden movement here? The contrary is to be a slow movement. There is a content of movement which is the varying about the abrupt and the change in the crust. The examples of such a movements are volcanic eruptions and the earthquake. There is change both about thereby. These two events are so sudden that the course of the rivers is undergoes a change, and the lava flow to the result. In it is a formation of a mountain, upland, and there is a plateaus as a matter of days. The landslides occur to the mountainous region due to this movement. There is a most important fact here. There is a most important point also. Sudden movement is a bearing about the erupt and the change on the earth as a surface, and volcanic is eruptions and the earthquake are the result of sudden movements here. And the movement which are bearing change are slowly and gradually over a long period of the time are known as a slow movement. There is a definition. And uplifted here is a submergence and the subsidence of the earth as a crust are result of slow movement. There is a most important here. अगला जो यहाँ हमारा टॉपिक आया है अत्यंत महत्वपूर्ण आया है, पृथ्वी की हलचलों का वर्गीकरण। देखिए, जो पृथ्वी में हलचलें होते हैं उसको कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो देखा जाए तो इसको दो भागों में विभक्त करने का प्रावधान है। पहला तो यही होता है कि पृथ्वी की हलचलों के समय के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जो होगा मध्य हलचलें, यानी जो है स्लो मूवमेंट, और एक होगा आकस्मिक हलचलें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हमारे समक्ष यही दिख रहा है कि मध्य हलचलें क्या होती है, आखिर जो मंद हलचलें वो क्या है। तो यहाँ पर अगर हम मध्य हलचलें की बात करें तो उस कहते हैं भूपट्टी पर कुछ परिवर्तन जो है इतने क्रमिक और मध्य होते हैं कि उनमें परिवर्तन सैकड़ों या हजारों वर्ष के बाद देखने को मिलता है। कहते हैं इतना आप आसानी से नहीं देख सकते बदलाव को। ऐसी हलचलें जिनका समय मानव जीवन से भी अधिक लंबा होता है मध्य हलचलें कहलाता है, यानी ये बहुत ही स्लो मोशन में होते हैं, बहुत ही धीरे होते हैं। ये हलचलें भूपट्टी पर जो है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप में हो सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकली हो सकते हैं। कहते उसे हम ऊर्ध्वाधर हलचलें भूपट्टी में धसाव या उभार देखने को मिलता है। भारत के अगर हम
काठियावाड़ तट पर उठे हुए समुद्री तलों में पाए गए समुद्री जीवों के अवशेषों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह तट कभी समुद्री जल के जो है नीचे था। यानी उनके सबों से ये पता लग जाता है, अफसोसों से ये पता लग जाता है कि पहले समुद्री तट जो थे काफ़ी नीचे थे। इसी प्रकार के उठे हुए समुद्री जो है तट भारत के पूर्वी तट के साथ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। यह तट समुद्री जल सतह से जो है 15 से लेकर 30 मीटर तक जो है ऊपर उठा दिए गए हैं। दूसरी ओर अगर हम भूपृष्ठ के धसाव के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे सुंदरबन के जो है डेल्टा में जो है पीटी और जो है जो लिग्नाइट जो सतहों की जो उपस्थिति तमिलनाडु के जो है तिरुनेलवेली में तथा जो है मुंबई द्वीप के जो है पूर्वी तट पर वनों का समुद्र में डूब जाना, ये सब जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आकस्मिक हलचलें। देखिए आकस्मिक हलचलें होती क्या है, कहते हैं मध्य हलचलों के विपरीत कुछ हलचलें ऐसी होती है जो भूपट्टी में जो है शीघ्र परिवर्तन ला देती हैं। जनरली सी बात है कि ये हो जाते हैं बहुत ही, जैसे कि आप एग्जाम्पल जानते ही हो कि ज्वालामुखी है, भूकंप, ऐसी हलचलें के उदाहरण है जो कि बहुत फास्ट होते हैं और बहुत शीघ्र आपको देखने को मिल जाते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुआ। इन दो घटनाओं द्वारा परिवर्तन इतने आकस्मिक होते हैं कि नदियों के मार्ग बदल जाते हैं तथा लावा के बहने तथा जमने से पर्वत उठे हुए भूभाग व पठारों का निर्माण कुछ ही दिनों में हो जाते हैं। और इन हलचलों के परिणाम स्वरूप जो है पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन भी होता है। तो इसे हम आकस्मिक हलचलें कहते हैं, जो कभी भी हो सकता है, शीघ्र होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ज्वालामुखी है और भूकंप है। अगर बात यहाँ पर हम करें इंपॉर्टेंट बात की, तो आकस्मिक हलचलें जो है भूपट्टी में तत्काल परिवर्तन लाती है और दूसरा जो है ज्वालामुखी तथा भूकंप जो है आकस्मिक हलचलों के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से।